जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्लास 11 चैप्टर 13 और हम अब पहुंच चुके हैं ओशनोग्राफी पर। आप सभी को पता ही होगा फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पार्ट्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जो कि हम कवर कर चुके हैं। अब ओशनोग्राफी वाटर के बारे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और इस सेशन में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ये डिस्ट्रीब्यूशन, सबमरीन, वाटर रिलीफ, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर ये वाला जिसमें हम पानी के बारे बहुत सारे फीचर्स, ओशन के रिलीफ फीचर्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टेम्परेचर सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज वाटर ओशंस। पहले पैरा में तो ये बताया कि अर्थ यूनिक पानी के कारण ही है और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि पानी के कारण। और हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, जिसके कारण पानी एक साइक्लिक रिसोर्स है। इट कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम ओशन टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर टू ओशन, ocean to land, and land to the ocean. The hydrological cycle describes the movement of water on, in, and above the earth. The water cycle has been working for billions of years. Next to air, water is the most important element required for the existence of life on earth. The distribution of water on earth is quite uneven. Many locations have plenty of water while others have limited quantity. So the circulation of water within the Earth's hydrosphere is different, in different form rather. Liquid, solid, gaseous, all these three forms are available in Earth. Refers to the continuous exchange of water between the oceans, then atmosphere, land surface and subsurface. 71% of the planet is basically water, and that is found in the oceans. Remaining is in the fresh water, in glaciers, ice caps, groundwater, then lakes, soil moisture, atmosphere, streams, and within life. 59% of the water that falls on land returns to the atmosphere through evaporation from the oceans as well as the other places, and the remainder runoff on the surface infiltrates into the ground or a part of it as it becomes glacier. Renewable water on the earth is constant while the demand is increasingly tremendous. This leads to water crisis in different parts of the world, spatially and temporally. Spatially मतलब अगर हम स्पेस वाइज बात करें फ्रॉम 0 डिग्री टू ऊपर सरफेस पे, और टेम्पोरली विद टाइम द पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर्स हैज़ फर्दर एग्रीवेटेड द क्राइसिस. सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द रिलीफ. रिलीफ मीन्स अंदर क्या फीचर्स हैं ओशन के. सबसे पहले शेल्फ है जी, जो पानी का यहाँ पे कम डेप्थ पे. देन यू हैव ए स्लोप, rise, and then abyssal plain, trenches, all these things we are going to discuss. So oceans are confined to the Great Depression of Earth's outer layer. In this section we shall see the nature of the ocean basins of the earth and their topography. I have divided the ocean part of the earth into 5 oceans: Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic oceans. Right, उसमें हम seas, bays, gulfs and other inlets are part of the 4 large oceans. The 3 to 6 kilometer sea level, अगर हम बात करें मेजर पोर्शन, सी फ्लोर इज फाउंड बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल. पानी के नीचे आपको 3 से 6 किलोमीटर के नीचे फ्लोर मिलता है. द लैंड अंडर द वाटर ऑफ द ओशंस इज द ओशन फ्लोर that exhibits complex and varied features. The floor of the oceans are rugged with world's largest mountain ranges, deepest trenches and the largest plains also. Those of the continents by the factors of tectonic, volcanic and this thing. अब ज़रा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें. ये एक्सटेंडेड मार्जिन है, यही कॉन्टिनेंट की आगे एक्सटेंशन है, इसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ. राइट, और ये डेप्थ कम होती है. ये कहीं पे बहुत वाइड है, कहीं पे बहुत नैरो है, और कहीं पर पानी की डेप्थ बहुत कम है, कईयों में थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है. सो क्लियर है जी. एंड्स एट वेरी नियर स्टीप स्लोप, जिसको हम शेल्फ ब्रेक कहते हैं. The width varies from ocean to another. The average width is about 80 km. Almost absent where narrow along the margins, like चिली के बिल्कुल किनारे पे आपको शेल्फ नहीं मिलेगी, ना सुमात्रा पे. दुनिया की सबसे बड़ी शेल्फ साइबेरियन शेल्फ है इन द आर्कटिक ओशन. द डेप्थ ऑफ शेल्व्स ऑल्सो वेरी. इसमें भी कोई क्वेश्चन बनता नहीं है जी.
The shelves are covered with variable thickness of sediments brought by the rivers, glaciers, wind, and all these. Right? Massive sedimentary deposits received over a long time shelves became source of fossil fuels. This is very important point. Most of the shelves are the one which are having source of fossil fuels. आपको shelves में काफ़ी तेल मिलता है. नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें, शेल्फ और ओशन बेसिन को जो कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं ये स्लोप, वेयर द बॉटम ऑफ द शेल्फ शार्पली ड्रॉप्स इनटू अ स्टीप स्लोप, और ये द डेप्थ ऑफ द स्लोप वेरीज फ्रॉम 200 टू 3000 मीटर. इसी के स्लोप के एंड पे आपको मिलेंगे कैनियंस और ट्रेंचेस. अगर हम बात करें डीप सी प्लेन्स की, the flattest and the smoothest regions of the world, and then the depth vary from 3000 to 6000 meter. These plains are covered with fine grained sediments like clay and silt. Next जी, अगर हम बात करें तो अंदर ट्रेंचेस होते हैं जी. The deepest parts of the oceans, steep sided narrow basins, they occur at the bases of the continental slopes. Normally slopes के किनारे पे ही होते हैं, along the island arcs or the active volcano in the strong earthquakes. दे आर सिग्निफिकेंट इन द स्टडी ऑफ प्लेट मूवमेंट्स. ट्रेंचेस आपको सभी को याद ही होगा, दुनिया की सबसे अंदर ट्रेंच कौन सी, मैरियाना ट्रेंच, जिसको चैलेंजर्स डीप कहते हैं. और ट्रेंचेस मैं कोशिश करूंगा सारे ट्रेंचेस दुनिया के देखने. आप ज़रूर चेक करिए इंडियन ओशन में कौन कौन से हैं, अटलांटिक ओशन में कौन कौन से हैं, और वहाँ से क्वेश्चन पॉसिबल है ट्रेंचेस कौन से ओशन में कौन सा, मार्क करके. राइट, सुगारू ट्रेंच भी है, एलूशियन ट्रेंच भी है, क्यूराइल ट्रेंच भी है, ये पैसिफिक ओशन में है. तो ये ट्रेंचेस को ज़रूर चेक करिएगा. अब आते हैं माइनर रिलीफ फीचर्स. माइनर मतलब जो फ्लोर के ऊपर आपको मिलेंगे. above mentioned major relief features on the ocean floor, some minor but significant predominant in the different parts. Mid oceanic ridge, जिसको मिड ओशनिक बेल्ट भी कहा जाता था, अटलांटिक रिज कहा जाता. ये ऐसे है कि जी ऐसे इस प्रकार ये रिज चल रही है, इधर भी पहाड़, इधर बीच में वैली है. लार्ज डिप्रेशन, राइट, और आइसलैंड इसी का पार्ट अटलांटिक ओशन में. देन यू हैव ए सी माउंट. अगर पानी के अंदर ऐसा माउंट बन रहा है, इसको समिट को हम कहते हैं सी माउंट, अबव द सी फ्लोर. दे आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन, इतने टॉल हैं. हवाई आइलैंड का एग्जांपल है एम्परर सी माउंट. देन यू हैव सबमरीन कैनियंस. कैनियन सभी को समझ आता है जी, खाई एक तरह का, राइट, वो भी सबमरीन पानी के अंदर भी कैनियंस है. ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर के बराबर के कैनियंस आपको समुंदर में भी मिलते हैं, राइट. देन यू हैव इस ग्योट्स. रिमेंबर दिस वर्ड ऑल्सो. अगर पानी के अंदर ऐसे फ्लैट टॉप्ड हो सी माउंट, जिसको आप प्लेट्यू कह सकते हैं, वैसा पानी के अंदर हो, उसको कहते हैं हम ग्योट्स. उसके बाद एटॉल्स, कोरल से बना हुआ, अगर कैल्शियम कार्बोनेट के आइलैंड बने हो उनको एटॉल कहते हैं, जैसे लक्षद्वीप इज एन एटॉल. और इनके अंदर एक पानी पकड़ा हुआ इस लेक को लगून भी कह सकते हैं. अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर दोस्त स्पेशली भी वेरी करता है इक्वेटर टू पोल्स, और टेम्परेचर इन डेप्थ भी वेरी करता है विद डेप्थ. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है. इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. आपको भी पता है ऊपर नॉर्थ में ज़मीन ज़्यादा, नीचे कम है, तो पानी नीचे वाले हेमिस्फेयर में ठंडा, ऊपर गर्म है. जहाँ पर लैंड होगी वो ज़्यादा रिसीव करेगा हीट, यही इधर बताया गया. उसके बाद प्रिवेलिंग विंड्स ऑल्सो अफेक्ट द ओशंस टेम्परेचर. सो जब हवा चलती है तो वार्म वाटर को ड्राइव अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो in the longitudinal variation in the temperature. Then you have is the another aspect ocean currents. जब ocean currents move करते हैं तो वो भी temperature को vary करते हैं. आप cold currents देखोगे, warm currents देखोगे, ये सारी चीज़ें we will see. All these factors influence the temperature of the ocean currents locally. The enclosed seas in the low latitudes record relatively higher temperature than the open seas, whereas the enclosed seas in the high latitudes have more lower temperature than the open seas. ये भी लॉजिक सभी को समझ आ चुका. अब अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें
तो आप सभी समझ सकते हो विद डेप्थ बाउंड्री टेम्परेचर चेंज होता है 100 to 400 मीटर बिलो द सी सरफेस एंड एक्सटेंड्स सेवरल हंड्रेड ऑफ मीटर्स डाउनवर्ड वेयर देर इज अ रैपिड डिक्रीज इन द टेम्परेचर। जिस पॉइंट पे जाकर टेम्परेचर डिक्रीज बहुत रैपिड होना शुरू हो जाए उस पॉइंट को हम थर्मोक्लाइन कहते हैं। और 90% ऑफ द वॉल्यूम वाटर ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन इन द डीप ओशन। और यहां पर टेम्परेचर जीरो तक भी पहुंच सकता है। क्लियर हो गया जी थर्मोक्लाइन क्या है? जिस पॉइंट के बाद टेम्परेचर बिल्कुल ही जल्दी रैपिड डिक्रीज होना शुरू हो जाए। The temperature structure of oceans over the middle and the lower latitudes can be described as three-layer system from surface to bottom. Over the middle and lower latitudes can be described as three layer. The first layer, top layer, which is the warm, because sun rays are here, it is about 500-meter thick, ranging from 20. This layer within the tropical region is present throughout the year, but in middle latitudes it develops only during summers. उसके बाद second layer आती thermocline layer, lies below the first layer and is characterized by rapid decrease in the temperature with increasing depth, and this is 500 to 1000 meter thick. Third layer is very cold and extends up to the deep ocean floor in the Arctic and the Antarctic part. Here only layer of cold water exists which extends to surface deep ocean. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सभी समुद्रों का अगर एवरेज लेके चलें तो 27 डिग्री है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। So that is by 0.5 degree per latitude. The average temperature 22 degree at 20 degree latitude and 14 degree at 40 degree latitude and 0 degree near poles. The oceans in the northern hemisphere record relatively higher temperature than the southern hemisphere. I hope everybody agree because of the land surface. The highest temperature is not recorded at equator but slightly north of it. क्योंकि इक्वेटर पर बारिश भी पड़ती है. टेम्परेचर ऑन द नॉर्थ एंड द सदर्न हेमिस्फीयर आर अराउंड 19 डिग्री एंड 16 डिग्री is due to unequal distribution of land and water in the northern and southern hemisphere. Maximum temperature of oceans is always at their surfaces because they directly receive the heat and transmit it to the lower layers into decrease of the temperature with increasing depth. But the rate of decrease is not uniform throughout. The temperature falls very rapidly up to depth of 200 meter and thereafter the rate of decrease of temperature is slowed down. अब बात करेंगे सैलिनिटी की. All waters in nature's rain water or the ocean water contain dissolved mineral salts. Salinity को अगर हम बात करें to define the total content of dissolved salts in sea water. It is the amount of salt dissolved in 1000 gram of sea water. तो इसीलिए पार्ट्स पर 1000 में इसको मेजर किया जाता है ग्राम्स पर 1000 ग्राम ऑफ द वाटर. दैट इज बेसिकली दिस थिंग. और अगर सैलिनिटी हो 24.7 से ज़्यादा उसको कहते हैं हम ब्रैकिश वाटर. सैलिनिटी डिपेंड किस पे करती है? इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन पे. अगर गर्मी बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो पानी उड़ेगा, सैलिनिटी बढ़ेगी. और अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो सैलिनिटी कम होगी. इक्वेटर पे दोनों फैक्टर्स प्ले करते हैं, इसीलिए ज़्यादा सैलिनिटी नहीं होगी, ज़्यादा ट्रॉपिक्स पे होगी. सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन द कोस्टल रीजन्स बाय फ्रेश वाटर. किसी जगह पर अगर फ्रेश वाटर फ्लो आ रहा है जहाँ पर नदी का पानी, तो वहाँ पर सैलिनिटी कम होगी. In polar regions by the process of freezing and thawing also it decreases. Wind से भी salinity पे प्रभाव पड़ता है. Ocean currents contribute to the salinity variations, right? Salinity, temperature and the density of water are interrelated. दुनिया की सबसे saltiest bodies ये हैं जी. लेक वैन है टर्की में, डेड सी यूएस में 238 और ग्रेट सॉल्ट लेक है यूएस में और डेड सी इजराइल में. इनको भी चेक करिए लोकेशन को. हाईएस्ट सैलिनिटी बॉडीज है हमारे अर्थ में. ये जो लाइंस है विच आर कनेक्टिंग ऑल द प्लेसेस विद द सेम सैलिनिटी, दीज आर बेसिकली आइसोहेलाइंस. ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको पता है ट्रॉपिक्स में, राइट. रेड सी में आपको मिलेगा इतना, while the estuaries in the Arctic and the salinity fluctuates between this thing seasonally. In hot and dry season, evaporation is high, the salinity becomes 70 even. The Pacific Ocean is mainly due to its shape, large areal extent. Salinity is from 35 to 31. On the western parts of the northern hemisphere, अगर आप पैसिफिक ओशन देख रहे हैं और वेस्टर्न पार्ट देख रहे हैं तो वो वेस्टर्न पार्ट होगा जापान वाला. ठीक है जी.
because of the influx of the melted water from the Arctic region. The same way 15 to 30 degree in this thing. Salinity of Atlantic Ocean is around 36. The highest salinity is recorded between 15 to 20 degree. Maximum salinity 37 is observed in the 20 to 30. तो ये बताई गई है सैलिनिटी कहाँ कहाँ पर. नॉर्थ सी इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हाई लैटिट्यूड्स records high salinity due to sea water from the brought by the North Atlantic drift. Baltic Sea records low salinity due to influx of river water in large quantity. ये दोनों पॉइंट टू बी नोटेड है, इन्हीं पे क्वेश्चन भी बन सकता है. मेडिटेरियन सी में बहुत सैलिनिटी है बिकॉज ऑफ हाई वेपोरेशन. इज वेरी लो इन ब्लैक सी ड्यू टू एनॉर्मस फ्रेश वाटर इनफ्लक्स. इनमें से कोई भी एग्जाम्पल उठा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर क्यों है, कैसे है. तो कुछ कहीं पे रिवर वाटर का एंट्री है, कहीं पे वेपोरेशन है, यही कारण है ये सैलिनिटी के. इंडियन ओशन की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में अगर आपको देखो तो इनफ्लक्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, तो सैलिनिटी कम होगी. अरेबियन सी शोज हायर सैलिनिटी क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन भी ज़्यादा और फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स भी कम है. अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएं तो चेंज कैसे होता है, लोकेशन, ये डिपेंड करता है लोकेशन पे भी. सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेस बाय द लॉस ऑफ वाटर. नेचुरली सरफेस पे तो इवेपोरेशन हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ता जाएगा, क्लियर है, और डिक्रीज बाय द इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर. सैलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स्ड. नीचे अगर पानी में जाएं तो वहाँ पर फिक्स्ड रहता है, ऊपर इवेपोरेशन होगा या ऐड होगा तो वहाँ पर चेंज होगा. बट देयर इज नो वे वाटर इज लॉस्ट, क्योंकि वहाँ पर पानी लॉस्ट हो नहीं सकता और ना सॉल्ट ऐड हो सकता. There is a marked difference in the salinity between the surface zones and the deep zones. The lower salinity water rests above the higher salinity dense water. हमेशा लोअर सैलिनिटी पानी ऊपर होगा, हायर सैलिनिटी नीचे होगा क्योंकि डेंस होता है. जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ. जैसे जैसे आप अंदर जाओगे सैलिनिटी बढ़ेगी. एक जोन आएगा जहाँ पर एब्रप्टली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उस जोन को हम कहेंगे हेलोक्लाइन. जैसे थर्मोक्लाइन था जहां पर एब्रप्टली टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए. अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज इट्स डेंसिटी टू इंक्रीज. हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक्स बिलो द लोअर सी सैलिनिटी वाटर. सो दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन बाय द सैलिनिटी. आई होप दिस टॉपिक इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. इट इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन योर एग्जामिनेशन. ओशनोग्राफी से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे. अगले आने वाले टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे जहां पर हम ओशन करंट्स और साइक्लोन्स के बारे डिस्कस, ओशन करंट्स और टाइड्स के बारे डिस्कस करेंगे जी. राइट. सो आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन. अगर आप लोगों को सही लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल and do share this video with other people who are appearing for CDS, CAPF and NDA exam. And I request all of you people, अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहता है, इस रेफरल कोड को पक्का लगाइए और सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लस पे. So that is all for today. I hope you people enjoyed this session. Thank you. Jai Hind everyone.